One day free legal awareness program was organized by All Mabo Students Union in collaboration with District Legal Service Authority held in Crete Higher Secondary School. Chief guest Sri Thomas Tang, guest of honor Sri Kamun Modi, special guest Sri Kadum Tang, President of All Ayang Student Union. Knowledge of students. And lastly, I am thankful to you all to have here to learn about Legal Service Authority and wish you all a good day. Legal Service Authority is to provide free edge. Nolung kendo perm la na mungkin opo ha tu ne. Lima video me kendo perm la, umum video me kendo perm la, nol ke knowledge lega ke, nolu hilo ho learning ni to ka, nol ke lo anyo ko siki to ka, knowledge bila he am se. Kasu magila sarko lo puriboy me ina bisa ima ba. Ai. Si orang si depa ko gawa ko ai pa bagap ko. One is Arunachal Pradesh Recording of Marriage Act 2008, and the second one is Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. The two ita ko kado. Nama mo ni kanya mo angkurajo di informal dun. Kalau mana mo benefits kapal idong iman, lalu hi ikonak tiada hubungan dengan mana mo angkurajo. Ina mo hi Arunachal Pradesh Recording of Marriage Act 2008. He mane government of Arunachal Pradesh 2008 का law को बनाई थी. The he inama all mane kapal itu na muluga. Basically this law makes mandatory to record your marriage or to register the marriage. Muluk sadi itu, muluk sadi yang muluk generally kapal itu na muluk sadi itu ada gedung. Ada orang mulu dua sih. Ipala dalam mulu itu rekor satu mah. Especially mana lima mulu ke oma tidak itu perlu gabung. He recording of marriage ni mulu ke register ni, mulu saja mulu marriage ni recording namanya. Kalau ke benefit itu mulu ke maximum benefit akan dimana mana. Kalau ke orang. Especially तुम्हारा एज में, तुम्हारा उम्र में, उसी पर आधारित ये कार्यक्रम है. ध्यान से सुनो. हम एक कहावत है, लुक बिफोर यू लिव. तुम गड्ढा में गिरने से पहले सावधान रहो. इसी पर आधारित ये कार्यक्रम है. तुम अभी बच्चा है. भविष्य में क्या होगा, अब क्या होना है, अब हमें क्या सोचना है, क्या सोचने से भविष्य में अच्छा होगा, ये तुमको अभी मालूम नहीं. उसी को जानकारी देने के लिए, मालूम कराने के लिए ये तुम्हारा भैया लोग एडवोकेट, रेस्पेक्ट एडवोकेट, दो एडवोकेट अपना काम छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़ के यहाँ आया है, यहाँ आए हुए हैं. तो हमारा जीवन मुल्क का जीवन है. मुल्क ये ना कहे बचे तो आई माँ को ये जो मुंगल और लाइव चिंता में लाभता मन इला आई पे ये जब कपड़े पे लगी है मुला जी लोग प्रोग्राम नोरु केंपर में नोरु लाइट लगा नोरु ताजी लगी नोरु ये पर हम लगा ये प्रोग्राम में रजा को पामाए माता को पामाए dari dua hok program kapag hindi pa lagi ng dalo sila malo mimmer wajah ka pernah kala
Abu Raja Jila, tanya apa kan? Abu Raja Jila, mereka lagi dengar Indian government, wajah kau rule punai itu, rule kita apa imam hukum, milo kau na jimalai, rule kita apa imam hukum, emla, dem point kau ada. Just I get one example, that is observe. स्कूल लोगों भी प्रोग्राम लगो आता पॉक्सो है पॉक्सो the good form of पॉक्सो is protection of child from sexual offense. It comes to act during 2012 kalau kita logo burai milong berap talangkan kalau ko हम लोग होय इसका मकसद है Bimelang itu pemilu talang kan. Was pokso no eres kai. No life long जीवन जे लगी उसको आगे करना है. तदोई देखरे तो इनमा पर इंतो उलंग का कातो उलंग का हमला कोई करो आज ऐसा करना. आगो मंजी न कर. नोडन इंतो उलंग गाता को उलुक kai. Oluk ko ba gesan ko ba ko lagi है ये बात gesan ko उसी को लगी है लाइव करता तो gesan पर लीगल एडवाइस लगी है देम ऊपर है नंगरे हुआ पता मिरर मिमांग है मुरे हुआ पता मो अबो बुरो kamang aku अबो kamang मुरे हुआ पता नोमा आया पने नोम oluk दबा pusat पने kadung jadi ingkul lagi saya pun kadung tapi melukai dan kalau baik inma kalau aku lagi itu ngira tidak mau kalau dulu lagi mana dulu pada dan apa itu bisa lo agar usai lagi aku bisa untuk tu belum gesalan kalau aku bisa lo tadi bilang lagi ni dan poin kalau tanya ada सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस मतलब डोमेस्टिक वायलेंस किस को मालूम है डोमेस्टिक वायलेंस सुना है ना सुना है डोमेस्टिक वायलेंस तब तो नॉट कानमान व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस देन जब घर में क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा मम्मी पापा का झगड़ा होता है फाइटिंग होता है और घर में पिताजी जो माँ को मारता है गाली गलौज करता है उसको क्या बोलता है डोमेस्टिक वायलेंस लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन उसी में रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है मीनिंग घर ना डोमेस्टिक एनिमल्स होता है ना तो उसका मतलब डोमेस्टिक का मतलब होता है घर घर का अंदर में रिलेशनशिप कोई जो ब्लड रिलेटेड होता है या ब्लड रिलेटेड नहीं होने से भी फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर कोई किसी को टॉर्चर करता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का अंदर में आता है फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रैंडफादर है ना आपका ग्रैंडफादर है ग्रैंडफादर को नो का बाबू माए नो आई bilang abu bilang agar torture करता है मान लो तो मुझे कांगी रो नंको काली मांगे तो को पिन भी मैं मा नो गिगे तो का या मोला फलाई लो वो क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस में वो भी आता है ठीक है एंड डोमेस्टिक वायलेंस जनरली लेकिन हम लोग का जो ये एक्ट जो है ये वुमेन रिलेटेड राइट से कंसर्न है लेकिन अभी डोमेस्टिक वायलेंस का स्कोप थोड़ा बढ़ गया है तो ओल्ड एज पेरेंट्स को भी डोमेस्टिक वायलेंस का अंदर में आता है और जैसे कि अनमैरिड सिस्टर होता है आपका जैसे न्यानी हो गया घर में रहता है ना तो न्यानी शादी नहीं करके बैठा है लेकिन उसको गाली देते थे तुम तो फ्री का खा रहा है तुम तो उसका साथ वो करता है तो वो सबको जब उसको ज्यादा अब्यूज करता है मुंह से जब गाली देता है उसको अब्यूज वर्बल अब्यूज होता है वर्बल अब्यूज करने से मेंटल अब्यूज मतलब मेंटली एकदम डिप्रेस होने तक गाली देते रहेगा ना ताना मारते रहेगा वो भी अब्यूज हो जाता है पैसा नहीं देगा क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ शादी हो जाता है या किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है तो पेरेंट्स का भी क्या होता है बच्चा लोग का प्रति में एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अच्छा खाना देना खिलाना स्कूल भेजना उसी तरह वाइफ का तरफ भी हस्बैंड का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अगर वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता है तो वो भी अमाउंटिंग टू क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस होता है ठीक है चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस का मतलब होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या होता है ठीक है अब सेक्सुअल ऑफेंसेस का कैटेगरी में आएगा बोलने से क्या क्या सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस बेसिकली यही होता है कि अनवांटेड टच होता है ना अगर आपको कोई अनवांटेड से टच कर रहा हो ना मतलब आपको खराब फील करा रहा हो जहाँ नहीं छूना चाहिए आपका प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा हो अनवांटेड टच
कोई आपका जो बड़ा वाला आदमी है, आपका स्कूल टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, या कोई डॉक्टर हो गया, कोई वो हो गया, आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप 18 ईयर्स से नीचे है तो पोक्सो आपका प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट है। सिर्फ हम तो आप लोग सब 18 ईयर्स से नीचे है तो ये पोक्सो, अगर आप लोग के साथ कुछ सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है तब ये आप लोग का सेफ गार्ड के लिए ये एक्ट होता है, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंसेस में आ जाता है पेनिट्रेटिव सेक्स आ जाता है, अगर आपके साथ में पेनिट्रेशन वाला सेक्स हो जाता है, पेनिट्रेटिव सेक्स आता है, वो हो जाता है, रेप हो जाता है, ये सब पोक्सो का अंदर में आता है। और उसका बाद से अगर आपके साथ में अगर कोई आपको गंदा वाला वीडियो क्लिप दिखाता है, बार बार हैरेस करता है, बार बार ये होता है कि अगर तुमको छुएगा चलो मेरे साथ चलो, अगर नहीं जाएगा तो तुमको हम वो तुम्हारा इज्जत उड़ा देगा, तुम्हारा फोटो कोई निकाल दिया, नंगा फोटो निकाल दिया, ये सब इंस्टेंसेस भी क्या होता है सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस का कैटेगरी में आता है। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस का कैटेगरी में जब आता है, पोक्सो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्ट है, क्योंकि वी बिलीव दैट कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स के नॉट, हम लोग 18 ईयर्स सब लोग मालूम है ना, 18 ईयर्स के बाद हम लोग कंसेंट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अभी हम लोग को क्या बोलता है माइनर बोलते हैं ना, अब हम लोग सब अडल्ट देता, हम लोग मेजर है ना, अडल्ट में आता है, और अब लोग सब 18 ईयर्स का नीचे है तो क्या है माइनर, राइट। तो पोक्सो जो माइनर का अंदर नहीं आता है, तो माइनर का हम लोग बिलीव करता है कि जो माइनर होता है उसका कोई कंसेंट नहीं होता है, मतलब आप लोग अपना साइन नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो सिमिलरली जब आपको कोई साथ में चलो आज रात को सो जाएगा या कुछ आपके साथ में सेक्सुअल एक्ट हो जाता है तो 18 ईयर्स का नीचे आप कंसेंट नहीं दे सकता है, सेक्सुअल एक्ट में आप इंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका कंसेंट इमटेरियल हो जाता है, और पोक्सो उसका ऊपर में लागू हो जाता है जो 18 ईयर्स से अबव हो, तो एज ऑफ 0 बेबी से लेके अप टू 18 ईयर्स का अंदर में पोक्सो का एक्ट आता है। अब पोक्सो का सबको गुड मॉर्निंग। ताका मैं इनको हो तोमनाम लगा पर ngो mabo especially mabo students union him ai rupa mudo ige lang bulu hikana program ko iga bo nam dempra koi dalo do kapila molo legal awareness hi ami kedara komti dong lo students kedara especially hilo molo bulu inko dong awareness kamangila various criminal at case lo kom bulu posilai dong ai poxo case him bulu ken mang poxo lagangam ken mang NDPS drugs lagangam ken mang ila ina maburu de na atuma ken pa nama kadong ila hilo ka awareness program him ngo hope dong at least ngo ka agom lubo nam kedadam ngo ka students hilo ka ho kid school lo ka students kedara taji to pa iga tajing ke lanyo ko mengga do pa amla dam ngo mudo iga lang viewers kedadam kom ngo ampa mudong ki hikana program lo ai ma dolong ami kedadam support lai to ka gairu na age dam mabo students union nam support to ka hikana initiative lo iga lang ngolu ako kom hikana program ipa mudong ina ma general public laga pa kom ipa mudong ina nolu next time ngolu program organize him abi to ka ngolu district legal services authority east yang lokka ina mango retainer advocate ngo kamune sani tang ngolu hikana program am hodai ya dong ya next time ko ngo mudong ki general public ngolu ka mabo ka ho ya east yang ka ho taka ma ala hikana program am attend palagi dong am lang ludong सरकार का तरफ से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है जिसका सेक्शन 12 का अंदर में एवरी सिटीजन जो एक शेड्यूल ट्राइब का होता है ST बोलता है, जो SC होता है वुमेन चिल्ड्रन और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है सब एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड और वो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से हम लोग को फ्री लीगल एड मिलना ही है। कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप गरीब है तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज आप लीगल हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का बेसिकली आर्टिकल 14 में भी इक्वालिटी बिफोर लॉ है जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, हम लोग का फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से इक्वल रिप्रेजेंटेशन बिफोर लॉ भी ज़रूरी है और आपको अगर आप कल को आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन बहुत मस्त है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सोशल स्टेटस, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू कैन अफोर्ड अ गुड लॉयर और नॉट। तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग का लीगल एड काउंसिल्स है जो एम्पैनल्ड है विद ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ईस्ट सियांग का अंदर में, तो आप लोगों को बेसिकली ये प्रोसेस अवेल करने के लिए क्या करना होता है कि आपको पहले इसमें आना होगा। हमारा ऑफिस है जो कोर्ट है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही है DLSA ऑफिस, एक आधार कार्ड के साथ में और आपका एक वर्किंग फ़ोन नंबर और एक फ़ोटोग्राफ चाहिए आपका पासपोर्ट साइज़, और आपको किस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए या काउंसलिंग चाहिए। अगर आपको सिर्फ काउंसलिंग भी चाहिए या कुछ पूछना है या एप्लीकेशन लिखवाना है, अगर आपको कुछ कागज़ आया आपको समझ में नहीं आ रहा या आपके साथ में कुछ गलत हो गया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है, तो आप
उसको वो कंप्लेन को लेके हमारे साथ में आ सकते हैं। और उसी के साथ में एक स्पेशली एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा जो पर्टिकुलरली DLA से नहीं है, लेकिन DLA से हम लोग ये वाला WCD डिपार्टमेंट के साथ में एक वन स्टॉप सेंटर करके इनिशिएटिव है जो स्पेशली जो वुमेन है, इंडिजेंट वुमेन हो गया या विमेन जो साउंड हेल्थ का नहीं हो गया या फिर विमेन विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या फिर डोमेस्टिक अब्यूज़ हो गया या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, सर्वाइवर्स हो गया, तो वन स्टॉप सेंटर उनको टेम्परेरी शेल्टर देता है। और इफ़ एट ऑल अगर आपको कोर्ट से कुछ रिलीफ चाहिए, आपको कोर्ट आना है, जैसे केस फाइलिंग करना है, तो वो केस हमारा DLSA में फॉरवर्ड हो जाता है। तो DLSA फिर फॉरवर्ड होने के बाद आपको एक फ्री एडवोकेट असाइन कर दिया जाता है और आपका केस को कोर्ट में लड़ दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये सब बेनिफिट्स है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का। और हम लोग बेसिकली गांव-गांव जाके भी लोगों को असिस्ट करते हैं, एक्चुअली असिस्ट करते हैं। इफ़ फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर कोई ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जिसका चाइल्डलेस ओल्ड पर्सन होगा तो उनको घर पे मतलब फॉर एग्जांपल उनको राशन कार्ड का ज़रूरी है, तकलीफ़ है, देन वी कैन हेल्प देम आउट टू फिगर आउट, या बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, तो वो सब में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में भी या एनी डॉक्यूमेंटेशन में भी हम लोग मदद कर देता है। सो दैट इज़ हाउ वी हेल्प पीपल। Thank you so much for joining us in RT News. कारुम सर से एक ही मैं सवाल करना चाहता हूँ आज का लीगल अवेयरनेस का बारे में। आज का लीगल अवेयरनेस किट में किया गया है और वो लीगल अवेयरनेस करने का कारण उन लोगों को क्या मोटिव है उसको थोड़ा जानना चाहूँगा सर से। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा नाम कादुम परमे है और मैं आमसू ऑल मबो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज का प्रोग्राम के बारे में चलिए हम थोड़ा आप लोग को हाईलाइट कर देते हैं। तो आज का प्रोग्राम एक्चुअली ये 1 डे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि हम लोग कई सेकेंडरी स्कूल का ऑडिटोरियम में किया गया है। तो इसमें आपका जैसे कि मबो हायर सेकेंडरी स्कूल से स्टूडेंट आए हैं, मोहतुम सेकेंडरी स्कूल से आए हैं, कस्तूरबा से आए हैं और आपका बोरगोली हायर सेकेंडरी से आए थे। तो वो लोग को एक्चुअली हम लोग का मेन मोटिव जो था आज का अवेयरनेस प्रोग्राम का वो एक्चुअली है आपका ये जो जैसे कि जो गर्ल्स स्टूडेंट होता है तो उसको लेके जैसे कि हम लोग का मैरिज सिस्टम हो गया और ये चाइल्ड एब्यूज़ ये सब जो अभी स्कूल में बहुत सारे हो रहे हैं जैसे कि पोस्को एक वगैरह हो गई, तो वो सब को लेके हम लोग एक्चुअली आज का प्रोग्राम को हम लोग कंडक्ट किए थे। तो फाइनली अभी हम लोग का कंडक्ट तो ख़त्म हो गया होगा। थैंक यू सो मच कारुम सर।